A very good morning to all of you. Today we discuss about software and the categories of the software. As we know that computer consists of hardware and software, and the hardware are the parts that are physical and tangible that we can see as well and touch are the hardware parts of the computer system. For example, like keyboard, mouse, monitor, CPU, all these are the hardware part of the computer system. And the softwares are the set of programs, set of instructions that command the computer to process the task. That is the software. Without the software, a computer is a dumb machine. आप एक तरह से ऐसे समझ लीजिए, आपने टीवी रख लिया है घर पे, बट उसके अंदर ना आप केबल लगा रहे हैं, ओके, ना आपने D2H जो डिश एंटीना है वो लगवाया है, ना आप उसमें कुछ और चीजें प्ले कर रहे हैं. इट मीन्स वो एक सिर्फ इट्स जस्ट हैंग ऑन द वॉल. देन व्हाट इज द यूज ऑफ दैट? इन द सेम वे, इफ वी हैव अ कंप्यूटर सिस्टम, we have all the hardware parts, but we didn't install any of the software in it. Then what is the use of that computer? Okay, so combiningly both of them makes a computer system. So software, the set of instructions that makes that machine, the hardware, useful to us, okay, through which we can take the use of that machine and fulfill our requirement. So software, we can divide the software in three categories. That is the system software, application software and customized, bespoke, tailor-made software. ये तीनों एक ही चीजें हैं, ठीक है. तो first is system software. As we come to know by the name system software, it means the softwares that are responsible to control all the internal instructions of a computer system are the system software. Sorry. वो कमांड्स, वो इंस्ट्रक्शंस, वो सॉफ्टवेयर्स जो पूरे कंप्यूटर के इंटरनल प्रोसेसिंग को कंट्रोल करते हैं, these are known as the system software. Okay, these softwares are responsible for the whole functioning of the computer system. Now, system software can be categorized in two other parts. That is first OS. You know very well what is OS. That is the exactly operating system. So, what is operating system? Operating system is a system software that acts as an interface between the user and the hardware, through which the user can interact to the system and can fulfill its requirement. Okay, so system software के बाद उसके अंदर जो नेक्स्ट जो उसको कंट्रोल कर रहा है पूरे सिस्टम को, वो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम. सो द ऑपरेटिंग सिस्टम plays a major role to execute the programs, the other application softwares into the computer system. So OS is responsible for allocating the required resources. ठीक है, कि हमें कोई भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट पड़ रही है तो उस जो हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जो कमांड है हमारी, उसको एग्जीक्यूट करने का काम, उस रिसोर्स को एलोकेट करने का काम, दैट इज डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. whether the instruction for allocating the memory, allocating the other output devices, input devices, ये सब कुछ कौन देखेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम. अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को भी सब डिवाइडेड करें, ठीक है, कि ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट वी कैन ऑल्सो कैटेगराइज द ऑपरेटिंग सिस्टम. इसको भी हम आगे फर्दर सब डिवाइडेड कर सकते हैं. लाइक single user operating system. Single user operating systems are those operating systems that we are using at our home, जो हम अपने घर में यूज कर रहे हैं. That is the single user operating system. आप अकेले उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है, that is the single user operating system. मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. मल्टी यूजर, एक ही समय पे बहुत सारे लोग अगर
उस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्वर इज अ मशीन विच इज एक्सेस्ड बाय मैनी ऑफ यूजर्स एट ए टाइम। ठीक है, उसके बाद टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर मोस्टली यूज्ड फॉर द साइंटिफिक पर्पसेस, और यू कैन से कि अगर मान लीजिए मतलब ये बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं टाइम बाउंड होंगे। टाइम बाउंड का मतलब है कि अगर इस सिस्टम के थ्रू कोई प्रोसेस आपको फुलफिल करवाना है और वो प्रोसेस उस टाइम में कंप्लीट नहीं होता है, एग्जीक्यूट नहीं होता है, देन जो आपने दूसरी एप्लीकेशन जिसको एग्जीक्यूट करवाना था उस टाइम पीरियड में अगर उसमें नहीं होती है तो वो पूरा बेकार। फॉर एग्जाम्पल, इफ द साइंटिस्ट वांट टू लॉन्च अ मिसाइल, वांट टू लॉन्च अ स्पेसशिप, एक काउंटडाउन आपने देखा होगा चलता रहता है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 पर वो पूरा एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। दैट शुड बी लॉन्च्ड एट द फिक्स्ड टाइम, और अगर वो उस समय पर एग्जीक्यूट नहीं होता है तो पूरा सिस्टम बेकार, उनको दोबारा से उसको रीशेड्यूल करना पड़ेगा, पूरी प्रोसेसिंग दोबारा करनी पड़ेगी। दैट इज द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इट मीन्स कि हम जो अपने सिस्टम में यूज करते हैं, हम जो अपना सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें एक प्रोसेसर लगा हुआ है, बट इन मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स बहुत सारे प्रोसेसर्स एक साथ काम करते हैं। दैट आर द मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। सो दीज आर सम टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर के बारे में हमने पहले भी थोड़ा डिस्कस किया था। नाउ अगेन लैंग्वेज प्रोसेसर्स प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल while when the program is communicating with the processor, कि किस तरह जो प्रोग्राम हमने लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, तो वो एग्जीक्यूट होगा ओनली व्हेन द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, only when that system understand that program, then it will be executed. अगर वो उसको समझ नहीं पाएगा, और वो समझेगा कैसे? in its own language, that is machine language. ठीक है, तो यहाँ जो हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम होगा, दैट इज ऑन लैंग्वेज प्रोसेसर्स। यहाँ पर मैंने दो चीजें लिखी हैं, दैट इज द सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। तो इनके बारे में अगर हम बात करें तो सोर्स कोड इज अ कोड विच इज डेवलप्ड बाय द सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स होते हैं, डेवलपर्स होते हैं, वो जो प्रोग्राम लिखते हैं इन एनी हाई लेवल लैंग्वेज लाइक सी, C++, जावा, पाइथन। ठीक है, तो इस लैंग्वेज का यूज करके जो प्रोग्राम्स लिखे जा रहे हैं, ठीक है, इन सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज, दैट इज द सोर्स कोड। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड इज द कन्वर्टेड कोड ऑफ सोर्स कोड इनटू मशीन लैंग्वेज। जो सोर्स कोड का कन्वर्टेड मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम है, दैट इज द ऑब्जेक्ट कोड विच इज प्रोसेस्ड बाय द प्रोसेसर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कोड रेफर्स टू द कोड यूजुअली इन मशीन लैंग्वेज और द बाइनरी कोड, a language that computer can understand easily, okay, and run on hardware. So this ये भी आपके लिए मेन है कि what is source code and what is object code. So source code is the code which is written by the programmers in high level language like C, C++, Java, Python, etc. Okay, which is easily understandable by the programmers. हम लोग easily उसको समझ सकते हैं। ठीक है, and the object code is the converted code into the machine language which is easily processed and understand by the processor. Okay, now let's say language processor के बारे में अगर हम बात करें तो
we can categorize in 3 categories like assembler, interpreter, and third one is exactly the compiler. Okay, assembler is used to convert the assembly language program, that converts the assembly language program into machine language. ठीक है. Next is interpreter that converts the high level language program into machine language step by step, and whenever there is an error it stops and will not continue until the error is removed. ठीक है. जब तक वो एरर नहीं रिमूव करी जाएगी तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा, एंड व्हेन द एरर इज रिमूव द प्रोग्राम इज अगेन लोडेड इनटू द मेमोरी एंड कंटिन्यू. Compiler is also used to convert the high level language program into machine language, but the difference between the interpreter and compiler is that the compiler converts the whole program in one go. It means कि वो सारा program पहले read करेगा. If there is an error, then it will send on the screen showing all the errors step by one by one along with the line number. Line number भी वहां को शो करेगा कि किस लाइन में एरर है. ठीक है. And when the errors are removed, the whole program will not again loaded into the memory. Only it will check out the errors and the program will execute it. तो ये भी एक रीजन है कि इंटरप्रेटर थोड़ा स्लो काम करेगा और कंपाइलर फास्ट काम करेगा. ठीक है. एंड पाइथन यूजेस इंटरप्रेटर, दैट्स व्हाई इट्स लिटिल बिट स्लो देन द जावा, बिकॉज जावा लैंग्वेज यूजेस both the interpreter and compiler combinedly. ठीक है. So this is the language processor. Now we move to the next, that is application software. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में अगर हम बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर तो वो सॉफ्टवेयर हो गया जो पूरे हमारे सिस्टम को प्रोसेस कर रहा है. लेकिन हम अगर अपने सिस्टम के अंदर विंडोज को इंस्टॉल करने के बाद उसके अंदर हमें मान लीजिए ग्राफिक सॉफ्टवेयर को यूज करना है, हमें फोटोशॉप को यूज करना है, बट देयर इज नो एनी सच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट ऑपरेटिंग सिस्टम. तो अकेले वहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल होने के बाद हमने ठीक है सिस्टम को चला लिया, ठीक है, बट उसके अंदर हमें जो काम करना है वो काम उसमें है नहीं, वो सॉफ्टवेयर उसमें है नहीं. ठीक. तो how can we make it useful for us? ठीक है. तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर दोज विच आर रेस्पॉन्सिबल ओनली सर्टेन एप्लीकेशन. ठीक है. तो वो ऐसी एप्लीकेशन होंगी जो हमारा एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को रन करेंगी. ठीक है. ऐसा नहीं है इफ देयर इज नो एनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देन द कंप्यूटर विल नॉट स्टार्ट, विल नॉट access any of the resource or will not execute any program. कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर नहीं है तो वो कुछ और काम नहीं कर पाएगा. बट इफ वी fulfill our requirement through certain type of software, then these softwares are application softwares. ठीक है. तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हैं जिसके थ्रू हम अपना कोई पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट कर पा रहे हैं. ठीक है. तो दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर पर्टेन्स टू वन स्पेसिफिक एप्लीकेशन. ठीक है. लाइक अगर हम रेलवे रिजर्वेशन की बात करें, या फिर मैंने अभी आपको बताया कि आप अगर किसी फोटो स्टूडियो शॉप पर जाते हैं तो वो पर्टिकुलर एक एडोब फोटोशॉप के ऊपर काम करता है. ठीक है. और अगर मान लीजिए वहीं उसके पास वो फोटोशॉप उस सिस्टम में नहीं है जिस पे वो काम कर रहा है, तो कैसे वो अपना काम फुलफिल कर पाएगा. तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट आर रेस्पॉन्सिबल टू पर्टिकुलर एप्लीकेशन. ठीक है. अब यहां पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मैंने 2 पार्ट में करा है, दैट इज पैकेजेस एंड यूटिलिटीज. तो एज वी नो दैट देयर आर millions or large number of peoples living in this world, and every person
have many different requirements. ठीक है, तो हर पर्सन को चाहिए कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर हो जो मेरे इस काम को पूरा करे, एक ऐसा सॉफ्टवेयर हो जो दूसरे काम को पूरा करे. तो इट मीन्स देयर आर ऑल्सो लॉट ऑफ एप्लीकेशंस. ठीक है, बट कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि सबके लिए कॉमन होते हैं. ठीक है, तो दीज आर द जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर्स जो कि सबके लिए कॉमनली एक जैसा ही काम करेंगे. उसमें वो काम क्या कर रहा है, इट्स डिपेंड्स ऑन द यूजर. ठीक है, तो पैकेजेस आर द सेट ऑफ एप्लीकेशंस दैट कंटेन सर्टेन टाइप ऑफ जनरल पर्पस एप्लीकेशंस. तो पैकेजेस वो सेट ऑफ एप्लीकेशंस होती हैं उसके अंदर जो कि एक जनरल पर्पस को कंप्लीट करती हैं. ठीक है, एज द एप्लीकेशन मैंने आपको बताया कि एज द एप्लीकेशंस आर न्यूमरस, देयर आर न्यूमरस यूजर्स. ठीक है, तो एक जनरल पर्पस को फुलफिल करने के लिए हमारे पास कुछ पैकेजेस अवेलेबल होते हैं जो पर्टिकुलर हर इंडिविजुअल की एक जनरल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं. जैसे हमारे पास पैकेज है MS ऑफिस. वी ऑल आर फैमिलियर विद इट. MS ऑफिस इज अ पैकेज दैट कंटेन्स MS वर्ड, ओके, MS PowerPoint, MS Excel, MS Access, OneNote. These are the some applications that are required by general people. अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट लिखना है देन ऑल द पर्सन्स विल यूज MS वर्ड. ओके, तो ये एक पैकेज हो गया दैट कंटेन्स सर्टेन टाइप ऑफ एप्लीकेशंस और जनरल पर्पस एप्लीकेशन दैट फुलफिल द जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर्स. एडोबी के आपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर सुने होंगे. एडोबी रीडर हो गया, एडोबी फोटोशॉप हो गया, एडोबी फ्लैश प्लेयर हो गया. जैसा रिक्वायर्ड है वैसा आप उसका एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं इस पैकेज की. ओपन ऑफिस ऑल्सो हैव द सेम टाइप ऑफ एप्लीकेशंस एज द MS ऑफिस. ओपन ऑफिस में आपका जो MS वर्ड होता है उसी तरह ओपन ऑफिस के अंदर MS ओपन ऑफिस एडिटर है. ठीक है, जिस तरह आपका MS ऑफिस में पावर पॉइंट है वहां पर आपका ओपन ऑफिस इम्प्रेस है. ठीक है, तो both the applications having the same type of both the packages have the same type of applications. ठीक है, बस उनका नेम थोड़ा डिफरेंट है. तो these are the packages that contains certain applications that are generally used by the all peoples. तो एक जनरल रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ये पैकेजेस डेवलप किए जाते हैं जो कि एक जनरल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं. नेक्स्ट इज यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर्स. चलिए इसके बारे में भी बात करेंगे. इतने आप जो अभी आपको बताया उसको आप समझिए. ओके.